Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about a new topic that is national income accounting, right? कि how to calculate national income, कि national income क्या होती है, national income के कौन-कौन से aggregates होते हैं, right? So let's discuss these in detail. So let's start. First, national income and related aggregates, right? National income क्या होती है and what are the aggregates of national income? National income is the aggregate value of all goods and services produced by a firm in a given financial year, right? कि जो भी सभी goods and services एक financial year में हमारी उसमें प्रोड्यूस किए गए हैं कंट्री में, that is considered as national income of the country. It can be stated that when the aggregate revenue generated by firms is paid out to the factors of production, right, it equals aggregate income और national income, right? कि कहते जो भी aggregate revenue हमें generate होता है firms से, कि अगर उसको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट करने में लगा देते हैं, सो इससे क्या हो जाता है, हमारी जो नेशनल इनकम क्या होती है, इक्वल हो जाती है और कैलकुलेट होती है. देयर आर डिफरेंट वेरिएंट्स और एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड ईच ऑफ द एग्रीगेट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग, यूज एंड मेथड्स ऑफ मेजरमेंट. दीज एग्रीगेट्स आर, first one is gross domestic product at market price. Gross domestic product at market price. Next one is gross domestic product at factor cost, right? Next आ जाता है हमारा net domestic product at market price. Fourth one is net domestic product at factor cost, right? So first one is domestic, second one is national. There are four components of domestic and four components of national. नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सो बेसिकली देयर आर 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. सो अभी हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे. क्लियर? Basic aggregates of national income. A number of goods and services are produced in a year by different production units within an economy, right? different production units को use करके क्या है, बहुत ज़्यादा goods and services क्या होती हैं, produce की जाती हैं. So it is not possible to add those goods and services in terms of their quantity. तो हम उनको count नहीं कर सकते, right? So we can, it is not possible to add these in terms of their quantity, therefore these are added in terms of money. Therefore उनको हम कैसे calculate करते हैं, in terms of money. There are 8 aggregates in national income for measuring the value of goods and services in terms of money. So first one is gross domestic product at market price. Gross domestic product at market price refers to the gross market value of all the final goods and services produced during a year within the domestic territory of the country. राइट ये क्या होती है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड जो कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर, राइट? ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस मीन्स दैट द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, दैट इज नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर इट. whenever we are talking about gross, therefore we also includes depreciation in it. they right, जहां पे भी ग्रॉस की बात आएगी उसमें हमने सब कुछ इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी टोटल वैल्यू जितना भी हमने खर्चा किया है वो क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. क्लियर? नेक्स्ट डोमेस्टिक का मतलब क्या है, डोमेस्टिक मीन्स दैट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आर लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. जो कि किसी कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्रीज में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी वो क्या होंगी, दैट विल बी कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक. क्लियर? नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इंडिकेट्स दैट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड. प्रोडक्ट में वो चीज़ें ही आएंगी जो कि रेडी टू यूज़ होंगी, राइट? जो कि फाइनल कंजम्पशन पे फाइनल कंजम्पशन हो चुकी होगी, अभी उनकी क्या है, कंज्यूमर क्या है, उनको रेडी टू यूज़
परचेज करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मार्केट प्राइस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड इज इंक्लूडेड इन जीडीपी, however the subsidies are excluded from it, right? जो भी हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए हैं वो क्या होती हैं, जीडीपी में इंक्लूड होती हैं, बट जो सब्सिडीज हैं वो क्या होती हैं, उससे एक्सक्लूड होती हैं। दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। क्लियर? The rest of the aggregates are determined by making some adjustments in ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो भी इससे बाकी जो हमारे एग्रीगेट्स हैं वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हम लोग एडजस्टमेंट्स करके उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? सेकेंड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट refers to the gross money value of all the final goods and services produced during a year within the domestic territory of a country. Clear? ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए जा रही हैं, उसकी ग्रॉस मनी वैल्यू दैट इज कंसीडर्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इट कैन बी डिटरमाइंड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट? जो भी हमने जितने भी एग्रीगेट्स होंगे सबको कहां से कैलकुलेट करना है? फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर? सो whenever we are going to find out gross domestic product at factor cost, then we have to subtract net indirect taxes from gross domestic product at market price. Then we will get gross domestic product at factor cost. Clear? Next, net domestic product at market price. It refers to the net market value of all the final goods and services produced during a year within the domestic territory of a country. Clear? ग्रॉस डोमेस्टिक में हम बात कर रहे थे ग्रॉस मनी वैल्यू की, बट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमें चाहिए नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। It can be determined as net domestic product at market price is equals to gross domestic product at market price minus depreciation. डेप्रीसिएशन जब हम ग्रॉस की बात करते हैं, डेप्रीसिएशन क्या होता है? उसमें इंक्लूड होता है, बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस देन डेप्रीसिएशन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर? नेक्स्ट, net domestic product at factor cost. It refers to the net money value of all the final goods and services produced during a year with the domestic territory of a country, right? ये क्या आ जाती है हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मींस नेट मनी वैल्यू जो कि सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट? Net domestic product at factor cost can be calculated as gross domestic product at market price minus net indirect taxes minus depreciation, right? Gross domestic product at market price minus net indirect taxes, then it will be the value of gross domestic product at factor cost, right? हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के जब हमने फाइंड आउट करी थी तो हमारा ये फॉर्मूला था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन, ये किसका फॉर्मूला था? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट? सो जो भी हमने फॉर्मूलाज लर्न किए थे उन दोनों को क्या कर देना है? हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है टू फाइंड आउट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द फोर डोमेस्टिक एग्रीगेट्स, राइट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जहां पे दो क्या है ग्रॉस की बात हो रही है, दो क्या है नेट की बात हो रही है।
Domestic in each of these aggregate states that the contribution of only those producers, whether they are resident or non-resident, will be included who are producing within the domestic territory of the country, right? जो 4 के 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्शन हुई है, वेदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, बट जो प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रही है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक. क्लियर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इंक्लूड्स डेप्रीसिएशन, राइट? इंक्लूड क्या करता है? डेप्रीसिएशन. Whenever we subtract this net indirect taxes from gross domestic product at market price, we get gross domestic product at factor cost, right? Gross domestic product at factor cost minus depreciation, we get net domestic product at factor cost. Net domestic product at factor cost plus net indirect taxes, we get net domestic product at market price. एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में क्या करना है, हमने डेप्रीसिएशन को इंक्लूड करना है, वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट? सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स, राइट? क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट? Gross national product at market price, it refers to the gross market value of all the final goods and services produced during a year by the normal residents of a country, right? जो कि हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे, that is gross market value of all the final goods and services. Gross national product at market price is equals to gross domestic product at market price plus net factor income from abroad, right? जो कि हमें abroad से income receive हो रही है, it is to be added in gross domestic product at market price, we get gross national product at market price. Gross national product at market price of a country can be less than its GDP at market price if net factor income from abroad is negative, right? अगर ये वैल्यू जो हमारी होगी क्या है, नेगेटिव होगी, देयरफॉर जो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगी एट मार्केट प्राइस क्या होगी, इससे भी कम होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. However, it can be more than gross domestic product at market price is net factor income from abroad is positive. अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी देन दिस. क्लियर? नेक्स्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, it refers to the gross money value of all the final goods and services produced during a year by the normal residents of a country, right? gross money value of all the final goods and services जो कि produce किए जा रहे हैं by the normal residents of a country. It can be determined as gross national product at factor cost is equals to gross national product at market price minus net indirect taxes. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से हमने क्या माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, देन वी गेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस refers to the net market value of all the final goods and services produced during a year by the normal residents of a country. Gross national product refers to gross money value, whereas net national product refers to the net market value, right? जो कि उसकी market value कितनी है final goods and services की. It can be determined as net national product at market price is equals to gross national product at market price minus depreciation, when depreciation has to be subtracted from gross national product at market price. We get net national product at market price. Clear? Next, net national product at factor cost.
It refers to the net money value of all the final goods and services produced during a year by the normal residents of a country. It can be determined as net national product at factor cost is equals to gross national product at market price minus net indirect taxes minus depreciation. Right? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डेप्रीसिएशन को डिडक्ट कर देंगे, वी गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको कि हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं. क्लियर? सो दीज आर द बेसिक 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. Relationship between 4 domestic aggregates, right? Gross national product at market price, gross national product at factor cost, net national product at market price and net national product at factor cost. National in each of these aggregates states that the contribution of only those producers who are normal residents of a country will be included. It does not matter if the production is being held outside the domestic टेरिटरी ऑफ द कंट्री. राइट, जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे कि प्रोडक्शन जो है वो कहाँ होनी चाहिए, विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, कि रेजिडेंट चाहे नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का और नॉन रेजिडेंट, इट डजेंट मैटर. बट इन व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल प्रोडक्ट, राइट, नेशनल प्रोडक्ट रेफर्स टू दी, यहाँ पे डोमेस्टिक नहीं आएगा, यहाँ पे नेशनल आएगा. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल, नेशनल में क्या आ जाता है कि हमें सिर्फ प्रोडक्शन देखनी है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, वेदर प्रोडक्शन इज बीइंग डन इन आवर कंट्री और फॉरेन कंट्री. राइट, प्रोडक्शन कहीं भी हो सकती है बट कहाँ किसके द्वारा होनी चाहिए, ओनली बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. क्लियर? Gross national product at market price minus net indirect taxes, we get gross national product at factor cost. Minus depreciation, we get net national product at factor cost. Right? Now net national product at factor cost plus net indirect taxes, we get net national product at market price. Net national product at market price plus depreciation, we get ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमें पता है कि डेप्रीसिएशन क्या होता है, इंक्लूडेड होता है, डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड. क्लियर? सो दीज आर द बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. नेक्स्ट, नाउ द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम. डोमेस्टिक इनकम मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट and national income means net national product at factor cost. Right? Firstly, meaning. It refers to the net money value of all the final goods and services produced during a year within the domestic territory of a country. Right? जो net money value है किसकी, of all the final goods and services produced during a year within the domestic territory of a country. On the other hand, national income means it refers to the net money value of all the final goods and services produced during a year by the normal residents of a country. Right? जो net money value हमें receive हो रही है of all the final goods and services during a year by the normal residents. यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेशनल इनकम की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्शन है वो कौन करेगा, बाय ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स. यहाँ पे क्या है, नॉन रेजिडेंट्स जो प्रोड्यूस करेंगे वो हम लोग कंक्लूड नहीं करेंगे इन नेशनल इनकम. ऑन द अदर एंड, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक में जो प्रोडक्शन है वो हमारी कहाँ पे होनी चाहिए, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री. राइट, वेदर इट इज बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता. Clear? Nature of concept. Domestic income is a territorial concept. It includes the value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country. Right? ये क्या है, एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, इंक्लूड करता है जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए जाते हैं. क्लियर? ऑन द अदर हैंड, नेशनल इनकम क्या है, इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट.
बिकॉज ये क्या करते हैं, नेशनल पूरे नेशन को लेके चलता है. इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द होल वर्ल्ड, जो कि पूरे देश में क्या किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं. क्लियर? So we can say that domestic in concept is shorter broad concept. On the other hand, national concept is a wider concept. Right? Category of producers. All producers within the domestic territory of the country are included in domestic incomes. जो भी producers होंगे हमारी domestic territory के अंदर वो include किए जाएंगे domestic income में. All producers who are normal residents of the country are included in national income. जो कि normal residents होंगे हमारी country के वो क्या होंगे, included in national income. Net factor income from abroad. Domestic income does not include net factor income from abroad. Domestic income में क्या है, net factor income from abroad include नहीं होती. On the other hand, national income includes net factor income from abroad. So these are the basic difference between domestic income and national income. Clear? So this is our domestic income, that is net domestic product at factor cost, right? Net domestic product at factor cost plus depreciation, we get gross domestic product at factor cost, right? Gross domestic product at factor cost plus net indirect taxes, we get gross domestic product at market price. ये क्या आ गया हमारा, gross domestic product at market price. Gross domestic product at market price subtracted depreciation, we get net domestic product at market price, right? जो depreciation है वो किस में include होता है, only gross में include होता है. इन दोनों में included रहेगा, but net national income में क्या है, net national income में क्या है, वो include नहीं होता. So net domestic product at factor cost plus net factor income from abroad minus net indirect taxes, we get national income, that is net national product at factor cost, right? Net national product at factor cost plus depreciation, we get gross national product at factor cost plus indirect taxes, we get gross national product at market price, right? Minus depreciation, we get net national product at market price. Then net national product at market price minus net indirect taxes minus net factor income from abroad, we get domestic income, that is net domestic product at factor cost, because domestic income does not include net factor income from abroad income. Clear? domestic income में ये वाली income क्या है, include नहीं होती. Clear? Next. Now, gross domestic product at market price versus national income. Gross domestic product at market price versus national income, right? Meaning, it refers to the gross market value of all the final goods and services produced during a year within the domestic territory of a country, right? कहते it refers to the gross market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country. जितनी भी gross goods and services produced की गई हैं उनकी gross market value, that is gross domestic product at market price, right? On the other hand, national income refers to the net money value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country, right? जो production होनी चाहिए वो किसके through होनी चाहिए, by the normal residents of a country. Nature of concept. Gross domestic product at market price is a territorial concept because it includes the value of all the goods and services produced within the domestic territory of a country. Because एक territory की बात कर रहे हैं, right? एक territory की बात कर रहे हैं, therefore we can say that it is a territorial concept. National income क्या है, एक national concept है because it includes whole world. It includes the value of all the final goods and services produced in the whole world, right?
Next, category of producers. All producers within the domestic territory of the country are included in gross domestic product at market price, right? जो भी producers क्या हैं, all producers within the domestic territory of the country are included in gross domestic product at market price. On the other hand, all producers who are normal residents of the country are included in national income. जो कि normal residents होंगे country के, उनके थ्रू जो प्रोड्यूस किया जाएगा दैट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज एट मार्केट प्राइस, देयरफॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड. राइट, मार्केट प्राइस की बात हो रही है, सो देयरफॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, इंक्लूड होंगे. नेशनल इनकम क्या है, इज एट फैक्टर कॉस्ट, देयरफॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एक्सक्लूडेड. यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है, देयरफॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, एक्सक्लूडेड, यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे. Depreciation. Depreciation is always included in gross domestic product at market price. On the other hand, depreciation is not included in national income. Depreciation सिर्फ gross में include करता है, net में include नहीं करता. Clear? Next. So, let's take some examples. Calculate national income or net national product at factor cost. We have gross national product at market price, subsidies, net factor income from abroad, depreciation, net indirect taxes. Clear? So, net national product at factor cost. सबसे पहले किसमें से फाइंड आउट होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ग्रॉस की बात हो रही है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेट. सो देयरफॉर डेप्रीसिएशन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. डेप्रीसिएशन माइनस क्या होएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. राइट, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से क्या होगा, सब्सिडीज को माइनस कर देंगे. सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 7,000 माइनस डेप्रीसिएशन 100 माइनस 500 माइनस 400 माइनस 100. So 7,000 minus 200, so our answer will be 6,800 crores. Right? We will not adjust net factor income from abroad as there is a national value in both net national product at factor cost and gross national product at market price. Therefore, बिकॉज कहते हैं नेशनल की बात हो रही है, तो देयरफॉर हमने क्या किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड नहीं किया. राइट. नेक्स्ट, कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दे रखा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया हुआ है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी ये आ गई हमारी रिसीट्स, दीज आर पेमेंट्स. क्लियर. सब्सिडीज, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. राइट. सो net national product at factor cost is equals to gross domestic product at market price minus consumption of fixed capital plus net factor income from abroad. right, net factor income from abroad, इसमें क्या होगा, इनकम माइनस पेमेंट. राइट, कि जितनी हमने इनकम रिसीव की है, जितनी हमने पेमेंट रिसीव करी है, उन दोनों उनकी कैलकुलेशन क्या होगी हमारी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं हमारे हमें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स माइनस सब्सिडीज. सो बाय अप्लाइंग द वैल्यूज वी गेट 5820 crore will be our answer. Clear? Next, calculate factor income from abroad. right, हमने क्या find out करना है, factor income from abroad. We are given gross national product at market price, indirect taxes, replacement of fixed capital, factor income to abroad, subsidies and net domestic product at factor cost.
ये हमें पेमेंट्स दे रखी है, वी हैव टू फाइंड आउट रिसीट्स, राइट। हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिसीट्स। सो टू कैलकुलेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, factor income from abroad, firstly GNP at market price में से माइनस करेंगे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, आफ्टर दैट क्या आ जाएगा हमारा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमें क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस subsidies, right? So this is our formula. By putting value we get gross national product at market price 7,000 minus 4,600 minus 150 plus 270 minus indirect taxes 500, subsidies 50. So by calculating these we get 450. So we get 2070 crores will be our answer. Clear? So this is the formula to calculate factor income from abroad. हमें ये वाली वैल्यूज गिवन थी बट हमने फाइंड आउट क्या करना था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को माइनस करना है। क्लियर? नेक्स्ट कैलकुलेट क्या करना है हमने, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो ये तीनों चीजें हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। वी आर गिवन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 80,000, सब्सिडीज 15,000, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 1 लाख, नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 75,000, gross domestic product at market price 1,10,000. Therefore, so to calculate indirect taxes किस में होते हैं, formula to calculate indirect tax, right? हम क्या करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सॉरी मार्केट प्राइस प्लस क्या करेंगे इसमें, सब्सिडीज, बिकॉज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को फाइंड आउट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज को माइनस करते हैं, देयरफॉर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सिडीज को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, राइट, माइनस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, right? So by putting figures 1 lakh plus subsidies 15,000 minus gross national product at factor cost minus 80,000, so ये हो जाएगा हमारा 1,50,000 minus 80,000, so our answer will be 3,500 crores, 35,000, sorry. Clear? So this is our answer, indirect taxes, right?
हमने ये वाला फॉर्मूला कहाँ से लिया, हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ से यूज किया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में से क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, राइट। हमने क्या फाइंड आउट करना था, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस फाइंड आउट करने थे, सो देयरफॉर ये वाली वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और जो ये सब्सिडीज वाली वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, इधर आके प्लस हो जाएगी, राइट। सो ये वाले फॉर्मूला से हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया है। क्लियर। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है डेप्रीसिएशन, राइट। सो डेप्रीसिएशन वी नो कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या गिवन है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सब्सिडीज, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी ग्रॉस में तो डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड होता है, बट नेट नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में क्या है, डेप्रीसिएशन इंक्लूड नहीं होता। सो देयरफॉर we know net national product at factor cost is equals to gross national product at factor cost minus depreciation, right। अभी depreciation है नहीं हमारे पास, depreciation हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। so our formula will become gross national product at factor cost minus ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस साइड आ जाएगी, net national product at factor cost, right। so 80,000 क्या है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट, एंड 75,000 क्या है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो देयरफॉर डेप्रिसिएशन विल बी 5,000 crores। क्लियर। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल हमें इनकम हमें गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक इनकम, राइट, यही फाइंड आउट करना है ना हमने। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस क्या करेंगे इसमें से, सब्सिडीज, राइट, सब्सिडीज। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 1,10,000 माइनस डेप्रिसिएशन 5,000 जो हमने अभी फाइंड आउट किया, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सो वैल्यू क्या होगी हमारी, ये हो जाएगी 1,50,000 माइनस 5,000 85,000 crores। क्लियर। सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज, राइट। अब तो आपको समझ आ गया होगा, सिंपल ही है फॉर्मूलाज, बस फॉर्मूलाज आपको समझने की जरूरत है कि जब हम ग्रॉस की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, बट नेट नेशनल की बात करते हैं, नेट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, राइट। नेक्स्ट डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। This can be categorized into income from domestic product accruing to private sector and income from domestic product accruing to public sector। कि private sector से जो हमें income receive हो रही है and public sector से जो हमें income receive हो रही है। Public sector में क्या आ जाता है, income from property and entrepreneurship accruing to government administrative departments and next savings of non-departmental enterprises, right। So दिस इज अ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम इन्वॉल्व्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ऑन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, राइट।
जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पे प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या है, हमारी डोमेस्टिक इनकम। It takes into account all producers doing business within the country's domestic boundary, right? सारे producers जो कि हमारी टेरिटरी पे, कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री पे काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस क्या है, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इन नेशंस डोमेस्टिक इनकम, net domestic product at factor cost, is generated by both public and private sectors. Hence it is divided into two sections: income from domestic product accruing to private sector, that part of the domestic income that only accrues to the private sector is referred to as income from domestic income accruing to private sector। जो कि private sector से आएगी income, उसको क्या बोलेंगे हम कि दैट डोमेस्टिक इनकम जो कि प्राइवेट सेक्टर से रिलेट करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनकम एक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर, जो कि इनकम पब्लिक सेक्टर से रिसीव हो रही है। दैट पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम दैट इज पेड टू द पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर। इन एडिशन इट हैज टू कंपोनेंट्स। First one is income from property and entrepreneurship that accrues to the government administrative department. This includes income earned by government departmental enterprises जैसे कि रेलवेज, पोस्टल, टेलीग्राफ्स एक्सेट्रा। एंड जो प्रॉपर्टी एंड बिजनेस, यानी प्रॉपर्टी से क्या रिसीव होगा हमें, रेंट एंड इंटरेस्ट, एंड बिजनेस से क्या होगा हमें, प्रॉफिट। क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है हमारी सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज। This includes any undistributed profits made by non-departmental government-owned enterprises जैसे कि MTNL, LIC etc. right? So ये क्या है हमारी non-departmental government-owned enterprises। उनसे जो हमें इनकम रिसीव हो रही है वो कहाँ आएगी, सेविंग्स ऑफ नॉन-डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज, राइट। नाउ what is personal income? Personal income क्या होती है? The total of all income, all the incomes received by households from all sources is known as personal income। कि जो भी इनकम रिसीव होती है हाउसहोल्ड को फ्रॉम ऑल सोर्सेज, कोई भी सोर्सेज हो सकते हैं, वो उनकी क्या होती है, पर्सनल इनकम। इट ऑल्सो इंक्लूड फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम्स। जो फैक्टर इनकम्स होती हैं वो फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड ट्रांसफर इनकम क्या होगी, उसमें पर्सनल इनकम में इंक्लूड होंगी। बट personal income does not include corporate tax and retained earnings, right? The households and private businesses both earn private income। जो households हैं और जो private businesses हैं दोनों को क्या होती है, private income होती है। Personal income on the one other hand exclusively refers to that part of private income that is received by households only, right? Personal income सिर्फ वो इनकम होती है, प्राइवेट पार्ट का वो पार्ट होता है जो कि सिर्फ हाउसहोल्ड्स को रिसीव होता है, राइट। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम पर्सनल इनकम सिंस इट इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय प्राइवेट बिजनेसेस एंड इज नॉट रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड, राइट। कॉर्पोरेट टैक्सेस कहते हैं पर्सनल इनकम से इसलिए एक्सक्लूड होती है सिंस इट इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय प्राइवेट बिजनेसेस एंड इज नॉट रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट के थ्रू प्राइवेट बिजनेसेस को दी जाती है एंड हाउसहोल्ड्स क्या है इसको रिसीव नहीं करते, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारी रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग्स विच आर रिटेन्ड बाय प्राइवेट फर्म्स फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड अनफॉर्सिन सिचुएशंस, राइट। जो कि प्राइवेट फर्म्स क्या करती है, अपने फ्यूचर एक्सपेंशन या कोई मिस हैपनिंग्स के लिए जो रिटेन करके रखती हैं मनी, वो होती है हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स। देयरफॉर इट इज नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज इक्वल्स टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग, राइट। प्राइवेट इनकम जिसमें से हमने कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स को माइनस करना है, दैट इज आवर पर्सनल इनकम। क्लियर। नेक्स्ट, difference between personal income and private income, meaning it refers to the actual income obtained by households from all sources, right। जो कि households को receive होती है actual income, वो क्या होती है हमारी personal income। private income it refers to the sum total of income received by the private sectors from all sources। जितनी भी income receive हो रही है by the private sector from all sources, that is known as our private income concept।
इट इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज ए कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट इनकम। ये नैरो कॉन्सेप्ट क्यों है? बिकॉज इसमें क्या है, सिर्फ वो वाली इनकम होती है रिसीव इंक्लूड होती है जो कि सिर्फ हाउस होल्ड को रिसीव होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट पर्सनल इनकम इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट। इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इंक्लूड्स पर्सनल इनकम, क्योंकि ये पर्सनल इनकम को इंक्लूड करती है। देयरफॉर ये क्या हो गया, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला, पर्सनल इनकम इज इक्वल्स टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। प्राइवेट इनकम में से हमें कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स को जब माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, देन वी गेट पर्सनल इनकम। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट इनकम इज इक्वल्स टू पर्सनल इनकम प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। पर्सनल इनकम में कॉर्पोरेट टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स भी इंक्लूड होती है। क्लियर? नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है? जो भी टोटल ऑफ ऑल इनकम्स एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जो हाउस होल्ड को इनकम रिसीव होती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, इट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट। जो भी फैक्टर इनकम रिसीव्ड होती है नॉर्मल रेजिडेंट को ऑफ अ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट, 1 साल में। नेचर ऑफ इनकम, इट कंप्राइजेस बोथ फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम। इसमें फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम दोनों इंक्लूड होते हैं। ऑन द अदर हैंड नेशनल इनकम, इट कंप्राइजेस फैक्टर इनकम्स ओनली, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्शन की बात होती है, सो देयरफॉर प्रोडक्शन में सिर्फ फैक्टर इनकम क्या होती है, इंक्लूड होती है। पब्लिक सेक्टर इनकम, इट डज नॉट इंक्लूड इनकम बाय द पब्लिक सेक्टर। On the other hand, national income, it comprises income earned by the public sector, right? national की बात आ रही है तो यहाँ पे public sector से जो income earned होगी वो क्या होगी, include होगी। clear? next आती है हमारी private income। private income क्या होती है? private income can be defined as the income accruing to the private sector both from domestic and international sources, right? कहते हैं प्राइवेट इनकम वो इनकम होती है जो कि प्राइवेट सेक्टर को रिसीव होती है फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज, राइट। प्राइवेट इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफर इनकम, राइट। फैक्टर इनकम अर्नड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। फैक्टर इनकम जो भी हमें अर्न हो रही है even from domestic territory or from the rest of the world. On the other hand, transfer income receive हो रही है within from domestic territory as well as from rest of the world, right? Private income is equals to income from domestic product accruing to the private sector, right? जो domestic product हम लोग private sector में accrue हो रहा है उससे जो income हो रही है plus net factor income from abroad plus interest on national debt plus current transfer from government plus net current transfers from rest of the world, right? So this is the formula of private income. Income from domestic product accruing to private sector plus net factor income from abroad plus interest on national debt plus current transfers from government plus net current transfers from rest of the world. So this is the formula of private income. Clear? Next, types of private income. अभी private income की कितने types की होती है? The private income, private sector receives both earned income, that is factor income, and unearned income, दैट इज ट्रांसफर इनकम। अनअर्न्ड क्यों? बिकॉज ये क्या होती है, हमें गवर्नमेंट से रिसीव होती है विदाउट नो प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। फर्स्ट वन इज फैक्टर इनकम, जिसको कि हम अर्नड इनकम बोलते हैं, जिसको कि अर्न किया जाता है। फॉर द प्राइवेट सेक्टर देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फैक्टर इनकम। फर्स्ट वन इज income from domestic output accruing to the private sector that is earned within the domestic territory, right? जो भी डोमेस्टिक आउटपुट हमें प्राइवेट सेक्टर में एक्रू हो रहा है जो कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होगा उससे जो इनकम रिसीव हो रही है, राइट। नेक्स्ट, income earned from sources outside the country is usually known as net factor income from abroad. जो भी sources outside of the country है उससे जो हमें इनकम रिसीव हो रही है वो क्या होती है, हमारी net factor income from abroad, right?
नेक्स्ट आ जाती है हमारी ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम दैट इज अनअर्न्ड इनकम। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर इनकम। फर्स्ट वन इज इनकम रिसीव्ड विद इन द कंट्री। जो इनकम हमें क्या हो रही है, विद इन द कंट्री रिसीव हो रही है। इट इन्वॉल्व्स एन इंटरेस्ट इन द नेशनल डेट एज वेल एज करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। राइट, इसमें क्या आ जाता है, इट इन्वॉल्व्स एन इंटरेस्ट इन द नेशनल डेट एज वेल एज जो करंट ट्रांसफर्स हमें गवर्नमेंट से रिसीव हो रही हैं। On the other hand, income received outside the country, it includes net current transfers from the rest of the world। जो हमें rest of the world से current transfer include receive हो रही है, right? Net transfer incomes under private income। transfer incomes under private income। in private income के अंदर transfer incomes क्या होती हैं? interest on national debt। To cover rising expenditure, the government may borrow funds from the people by issuing bonds such as NSC, saving bonds, and so on. The government generally uses these debts for personal consumption. As a result, interest on these debts is considered transfer income for private enterprises. Right? कहते हैं जब क्या हो जाता है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, more than when expenditure of government becomes more than its savings, right? so उस टाइम पे क्या हो जाता है, गवर्नमेंट को फंड्स क्या करने पड़ते हैं, बोरो करने पड़ते हैं पीपल से, बाय इशूइंग बॉन्ड्स लाइक एनएससी, राइट, सेविंग बॉन्ड जो हम एनएससी लेके रख लेते हैं, राइट, जिसपे कि हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है। सो गवर्नमेंट कहते हैं इन सच डेट्स को यूज करता है फॉर पर्सनल कंजम्पशन, राइट। एज ए रिजल्ट जो इंटरेस्ट इन डेट्स पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम फॉर प्राइवेट एंटरप्राइजेस। क्लियर। नेक्स्ट, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस कैटेगरी कंप्राइजेज एनी ट्रांसफर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस कैटेगरी में कहते कोई भी ट्रांसफर पेमेंट्स जो कि हमें गवर्नमेंट से रिसीव हो रही हैं, सच एज सब्सिडीज, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, स्कॉलरशिप्स एटसेट्रा आर इंक्लूडेड, राइट। ट्रांसफर पेमेंट्स जो कि हमें गवर्नमेंट से रिसीव हो रही हैं, जैसे कि सब्सिडीज हो गया, ओल्ड एज पेंशन होगी, स्कॉलरशिप्स होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए, सो ये क्या हो जाती है हमारी करंट ट्रांसफर। सच ट्रांसफर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज दे आर वन साइडेड, दैट इज दे फ्लो फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, राइट। कहते ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं बिकॉज दीज आर यूनिलेटरल और वन साइडेड, बिकॉज ये ओनली फ्लो फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को कोई काम नहीं करना पड़ता है इसके लिए गवर्नमेंट का, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। It includes net gifts and remittances received from abroad, right? जो भी प्राइवेट सेक्टर को कोई गिफ्ट्स मिल रहे हैं, कोई रेमिटेंसेस मिल रहे हैं, कोई अलाउंसेस मिल रहे हैं, सो वो क्या हो जाते हैं, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। It is positive when transfers received from abroad are greater than transfers paid abroad, right? कहते ये पॉजिटिव कब होंगे, when receipts are more than payments. However, it is negative if transfers paid abroad are greater than those receipts. However, कहते ये negative कब होगा, when payments are greater than receipts. Clear? So these are net current transfers from the rest of the world, right? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग प्राइवेट इनकम, कि हमारी जो प्राइवेट इनकम है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। So, private income from domestic concept, say GDP, gross domestic product at market price, कि इससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। सबसे पहले हमें क्या करनी है, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है, gross domestic product at market price minus depreciation minus net indirect taxes, right? Next, step 2, calculate income from domestic product accruing to the private sector, right? Income from domestic product accruing to private sector is equals to net domestic product at factor cost
minus income from property and entrepreneurship accruing to government administrative departments minus savings of non-departmental enterprises, right? So इसमें से हमने ये दोनों चीजें माइनस कर देनी है. स्टेप 3, कैलकुलेट प्राइवेट इनकम. नाउ प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इज इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से इनकम एक्रू हो रही है प्राइवेट सेक्टर को, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट, प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? So these are the basic steps to calculate private income. So here is a scenario, gross domestic product at market price, उसमें से depreciation and indirect taxes को माइनस कर देंगे, so we get domestic income, that is net domestic product at factor cost. Now net domestic product at factor cost में से when we deduct income from property and entrepreneurship accruing to the government administrative departments less savings of non-departmental enterprises, so we get income from domestic product accruing to the private sector, right? So उसमें ऐड ऑन करेंगे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल डेट ट्रांसफर, current transfers from government, net current transfers from rest of the world, so we get our private income, right? Next, private income from national concept, वो था हमारा डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट से जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये है नेशनल कॉन्सेप्ट. अभी नेशनल कॉन्सेप्ट के जीएनपी से कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्राइवेट इनकम को, क्लियर? स्टेप 1, कैलकुलेट नेशनल इनकम. नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट? स्टेप 2, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम नेशनल प्रोडक्ट एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेशनल प्रोडक्ट से इनकम जो कि प्राइवेट सेक्टर को रिसीव हो रही है उसको कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स माइनस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस. नाउ स्टेप 3, कैलकुलेट प्राइवेट इनकम. प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनकम फ्रॉम नेशनल प्रोडक्ट एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एवरीथिंग इज सेम, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? वहां पे हम ले रहे थे डोमेस्टिक इनकम, यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग नेशनल इनकम, राइट? सो ये फॉर्मूला भी सेम है. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बट whenever we are talking about national concept we will have to take gross national product at market price, right? So gross national product at market price less depreciation less indirect taxes, so we get net national income और net national product at factor cost. उसमें से जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस को माइनस करेंगे, वी गेट income from national product accruing to the private sector. Then add national debt interest, current transfers from government, net current transfers from rest of the world, we get private income from national concept, right? Next, difference between private income and national income. Private income and national income में क्या difference है? Meaning private income, the income accruing to the private sector both from domestic and international sources, right? Private income में कौन सी income include होती है? From domestic as well as from international sources. National income में the aggregate value of all goods and services produced by firms in a given financial year. पूरी aggregate value of all goods and services जो कि firms क्या कर रही है? Produce कर रही है in a given financial year. Factor transfer income, private income consists of factor income as well as transfer income. Private income में दोनों include होते हैं. National income consists only factor incomes. Transfer incomes national income में consider नहीं होते. Public sector income,
public sector income is not included in private income, right? Public sector income is included in national income. पब्लिक सेक्टर इनकम प्राइवेट इनकम में इंक्लूड नहीं होती, बट नेशनल इनकम में क्या होती है, इंक्लूड होती है. क्लियर? नाउ difference between private income and domestic product accruing to the private sector. कहते प्राइवेट इनकम और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें प्राइवेट सेक्टर में एक्रू हो रहा है उसका क्या डिफरेंस है. प्राइवेट इनकम कहते एक नेशनल कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट. ऑन द अदर हैंड इट इज अ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट एक्सक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि इसमें क्या है, इंक्लूड नहीं होती. फैक्टर ट्रांसफर इनकम, प्राइवेट इनकम कॉन्सिस्ट्स ऑफ फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफर इनकम. प्राइवेट इनकम में फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफर इनकम दोनों इंक्लूड होती हैं. डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट्स ओनली ऑफ फैक्टर इनकम. इसमें कौन सी ओनली फैक्टर इनकम क्या किए जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, पर्सनल नेशनल एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. पर्सनल नेशनल एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है आर एक्सपेंडिचर्स, स्पेंडिंग. क्लियर? फर्स्ट आ जाती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम दैट इज एक्चुअली अवेलेबल एट द डिस्पोजेबल ऑफ अ हाउस होल्ड, राइट. It is that part of the personal income that households keep after paying all taxes, fees and other miscellaneous government receipts. कहते ये वो पार्ट होता है पर्सनल इनकम का जो कि हाउस होल्ड क्या करती हैं, टैक्सेस, फीस एंड जो भी गवर्नमेंट रिसीट्स हैं उनको पे करने के बाद अपने पास रखती हैं, राइट. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक्सक्लूड्स पर्सनल टैक्सेस एंड मिसलेनियस गवर्नमेंट रिसीट्स. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में पर्सनल टैक्सेस और जो मिसलेनियस गवर्नमेंट रिसीट है वो क्या है, एक्सक्लूड होते हैं. पर्सनल इनकम डिस्क्राइब्स द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज, राइट. जो भी टोटल इनकम हाउसहोल्ड्स को रिसीव हो रही है फ्रॉम ऑल सोर्सेज वो क्या होती है, उनकी पर्सनल इनकम होती है. Personal disposable income, on the other hand, is that part of the personal income that each household is free to spend as they like. This means that it shows the purchasing power of the household, right? Like जैसे expenditures and spending कि जितनी मर्जी वो spend कर सकते हैं वो उनकी मर्जी है. वो पार्ट होता है पर्सनल इनकम का जो कि हाउस होल्ड क्या है, फ्रीली जहां पे चाहे वहां पे स्पेंड कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो इट ऑल्सो शोज द परचेजिंग पावर ऑफ द हाउस होल्ड. देयरफॉर द पोर्शन ऑफ अ पर्सन's इनकम दैट इज पेड टू द गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. कहते इसीलिए जो पार्ट हम लोग गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, जितना पोर्शन हम लोग अपनी इनकम का गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वो क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में इंक्लूड नहीं होता. क्लियर? पर्सनल टैक्सेस की कौन से टैक्सेस होते हैं, बिकॉज ये कहते हैं इंक्लूड क्यों नहीं होते पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में, बिकॉज हाउस होल्ड मस्ट पे डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, हाउस टैक्स टू द गवर्नमेंट, राइट. क्योंकि जो इनकम टैक्स, हाउस टैक्स हैं वो क्या है, गवर्नमेंट को पहले ही पे कर देती है. द मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट that households have to pay to the government in the form of fees, fines, etc. or are also not included in personal disposable income, right. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस माइनस मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट. Another method to calculate personal disposable income. Households can spend their personal disposable income on consumption of goods and services or save for future. Right? कहते वो क्या करती है, कंज्यूम भी करती है गुड्स एंड सर्विसेज को और अपने फ्यूचर के लिए सेव भी करती है. Therefore, personal disposable income can also be calculated by पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग्स, कि जितना उसने स्पेंड किया और जितना उसने सेव किया, राइट. सो दिस इज आवर नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में
जब ये सब चीज़ें क्या करेंगे, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो वी गेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, राइट। जब ये चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। वही पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में जब इन चीज़ों को ऐड ऑन किया जाएगा, सो वी गेट आवर नेशनल इनकम। क्लियर? सो दिस इज बेसिकली कि जो हम प्रीवियस अपनी स्लाइड में कर चुके हैं वही चीज़ जहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाती है हमारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इट रेफर्स टू दैट इनकम दैट इज रेडली अवेलेबल टू disposable to the entire nation. It consists of both factor and transfer income. It is also referred to as net national disposable income. जो पूरे एंटायर नेशन को इनकम अवेलेबल होती है उसको क्या बोलते हैं हम? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसमें फैक्टर इनकम्स भी आती हैं एंड ट्रांसफर इनकम्स, बोथ आर इंक्लूडेड। National disposable income comprises of net indirect taxes and net current transfers from the rest of the world, right? National disposable income में दोनों चीजें आती हैं, net indirect taxes as well as net current transfers from the rest of the world. Net disposable income includes net indirect taxes because it is the government transfer income and the government is free to utilize it wherever it considered right? क्योंकि ये गवर्नमेंट की ट्रांसफर इनकम होती है तो एंड गवर्नमेंट क्या है, इज फ्री टू यूटिलाइज जहां पे भी वो उनको सही लगता है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ऑल्सो इंक्लूड्स नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज द गवर्नमेंट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि गवर्नमेंट की ट्रांसफर इनकम है कहाँ से? फ्रॉम अब्रॉड, देयरफॉर इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। So our national disposable income is equals to national income plus net indirect taxes plus net current transfers from the rest of the world. Clear? So this will become our national disposable income, right? Next, another method to calculate national disposable income. The national disposable income is the maximum income available that can be saved and spent by a nation on the consumption of goods and services, right? कहते हैं वो मैक्सिमम इनकम जो कि वो सेव भी करती है एंड स्पेंड करती है ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ नेट national disposable income is thus national disposable income is equals to national consumption expenditure plus savings. Now अभी national consumption expenditure क्या होता है? Is the sum of private final consumption expenditure and government final consumption expenditure, कि जो private firms क्या कर रही हैं, कितना consume कर रही हैं, कितना खर्चा कर रही हैं and government कितना spend कर रही है। Clear? नेक्स्ट आ जाती है हमारी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग डेप्रिसिएशन टू नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। जब हम नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में डेप्रिसिएशन को ऐड ऑन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, राइट? सो दिस इज आवर नेशनल इनकम, राइट? ये हमारी नेशनल इनकम है। जब नेशनल इनकम में प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट बिकम्स नेट डिस्पोजेबल इनकम प्लस डेप्रिसिएशन, इट बिकम्स ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, राइट? ग्रॉस नेशनल में हमने देखा ना कि डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, minus depreciation it becomes net national disposable income minus net current transfers from rest of the world minus net indirect taxes, it becomes national income, right? So these are the basic three concepts of disposable income. Clear? Next, now डिफरेंस बिटवीन नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेशनल इनकम। जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होती है एंड जो नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है? मीनिंग, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू दैट इनकम दैट इज रेडली अवेलेबल फॉर डिस्पोजेबल टू द इंटायर नेशन, जो कि पूरे इंटायर नेशन के पास है कि वो उसको खर्च कर सकती है, राइट?
ऑन द अदर हैंड नेशनल इनकम क्या होती है, इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर, कि जो भी पूरी गुड्स एंड सर्विसेज एक फर्म ने प्रोड्यूस की हैं इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर, उसकी एग्रीगेट वैल्यू क्या होती है, हमारी नेशनल इनकम, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फैक्टर ट्रांसफर इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में इंक्लूड होती हैं बोथ फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफर इनकम। ऑन द अदर हैंड हमें पता है नेशनल इनकम इंक्लूड करता है ओनली फैक्टर इनकम्स, इट एक्सक्लूड्स ट्रांसफर इनकम्स, राइट। नेक्स्ट, नाउ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जो हमारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है और जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है उनमें क्या डिफरेंस है। सो मीनिंग, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, रेफर्स टू दैट इनकम दैट इज रेडली अवेलेबल फॉर डिस्पोजेबल टू द एंटायर नेशन। ऑन द अदर हैंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम is the term used to describe the part of the personal income that is actually available at the disposal of a household, right। पर्सनल इनकम का वो पार्ट जिसको कि वो एक्चुअली क्या है, अपने हाउस होल्ड जो हाउस होल्ड है वो एक्चुअली क्या कर सकती है, खर्च कर सकती है, राइट। कॉन्सेप्ट, इट इज अ ब्रॉडर टर्म बिकॉज इट कवर्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इनकम, राइट। जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है बिकॉज हमें नेम से ही पता चल रहा है नेशनल मीन्स पूरे नेशन की बात चल रही है, और पर्सनल में आए ओनली हाउस होल्ड। पर्सनल इनकम में कौन कंसीडर होता है, ओनली हाउस होल्ड को कंसीडर करते हैं। सो बेसिकली वो क्या, नेशनल इनकम क्या होगा, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ऑन द अदर हैंड जो पर्सनल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो क्या है हमारा नैरो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट ओनली कंसीडर हाउस होल्ड इनकम, राइट। नेक्स्ट हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट इंक्लूड्स ऑल नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे वो क्या होंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे बिकॉज नेशनल इनकम मीन्स पूरे नेशन की बात हो रही है। ऑन द अदर हैंड पर्सनल इनकम की बात करें तो कोई भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इंक्लूड नहीं होते बिकॉज जो हाउस होल्ड हैं वो गवर्नमेंट को पहले ही इनकम टैक्स हाउस टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को पहले ही टैक्सेस पे कर देते हैं। इस सो देयरफॉर जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो पर्सनल इनकम में हम लोग इंक्लूड नहीं करते। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर? So this is it for today's video. I hope you liked my video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you.